Okay, today's topic is optimization, right? So the basic meaning of optimization, each and everybody is clear what is the meaning of optimization. Optimizations means to reduce your work in term of speed, in term of storage, right? In term of executions, right? These are the part that is related to optimizations, right? So in compiler point of view, how to tackle these things, right? So there is the two basic categorization. First is machine dependent optimization and second is machine independent optimization, right? So in compiler point of view, if we talking about the code optimization, so we classified into two types. First is machine dependent and second is machine independent, right? So in machine independent, we again classified into two types. First is loop optimization and second is function preserving, right? These are the broader way to classified of optimization, right? The simple meaning of optimization we already discussed in previous lecture. What is the meaning of simple meaning of optimization? In term of reduce the space, right? Increase the computations power. That is the main objective of optimizations, right? In first point we already discussed, a code optimization process must follow the three rules, right? the code co- the output code must not in any way change the meaning of the program. If you use the optimization, that is doesn't means you change the objective of the program. It means the objective of the program is similar as the previous one after the optimizations, right? Optimization should increase the speed, that is a common part. And the last is optimization should itself be fast. That is an important point. In previous lecture we already discussed why this is important. If we use the complex logic and the system registers are overflow, at that point there is no uh, meaning of optimizations, right? Clear now? After that we discuss what is the constant folding, right? Constant propagations, right? Clear? Code movement, common sub expression eliminations, right? These are the different methodologies that are used for optimization. Today we discuss these methodologies with the help of example. Before go to the example, one thing that more clear in term of coding point of view, right? That is a code movement or code motion, right? What is the meaning of code movement or code motion? It's a simple meaning. If we replace or if we move one code, right, one place to another place, right, just for the simplicity of the program or to increase the uh, execution power of the program, right? So that is the part of code motion, right? In this example you can check, while I is less than equal to max minus 1, sum equal to sum plus a of I. Suppose the max value is 1000. Clear? So each and every time compiler compile these things, 1000 minus 1, then next time मैक्स में से जो भी वैल्यू आपके पास में होगी दैट इज 999, then again minus 1, that compute number of times, right? That in the looping terms, right? So it takes maximum time, rather than हम क्या करें एक particular part पे इसको execute करा दे, right? execute कराने का मतलब क्या है? आपके पास में हमने ऊपर लिखा है n equal to max minus 1. मैक्स की वैल्यू हमारे पास में एक ही बार है, राइट? यहाँ पे हम मैक्स की वैल्यू को चेंज नहीं कर रहे हैं क्योंकि मैक्स हमने डिफाइन कर रखा है और उसमें हम -1 कर रहे हैं। क्लियर? सो यहाँ पे हमने क्या डिफाइन किया हुआ है? n इक्वल टू मैक्स माइनस 1। तो अब हमारे पास में ये जो लूप है वो कितनी बार चल रहा है आपके पास में, जो ये n की वैल्यू काउंट होके आ गई। ड्यूरिंग दिस ऑपरेशन हम कहीं पे भी मैक्स को चेंज नहीं कर रहे हैं। इट मींस जो आपके पास में मैक्स माइनस 1 वन टाइम परफॉर्म होगा वही तो हर बार कंटिन्यूएशन में चलेगा। क्लियर? सो इस चीज को हम क्या कर सकते हैं, कोड मूवमेंट और कोड मोशंस के थ्रू चेंज कर सकते हैं। कल एक और एग्जांपल लिया था जहां पे हम लोगों ने x इक्वल टू वाई प्लस जेड को यूज किया था। इसका इसके अंदर ऑपरेशंस में कहीं यूज नहीं हो रहा है, राइट? वन टाइम यूज है तो हमने इसको इसके लूप के बाहर निकाल दिया, राइट? अब क्या होगा, ये स्टेटमेंट आपके पास में जितनी बार ये लूप चल रहा है उतनी बार एग्जीक्यूट नहीं होगा, केवल सिंगल टाइम एग्जीक्यूट होगा। तो जो ओवरऑल आपके पास में रनिंग टाइम है जो वेस्ट हो रहा था वो आपके पास में इनहेंस हो जाता है। सो ये आपके पास में किसका पार्ट होता है? कोड मोशन या कोड मूवमेंट का, राइट? नाउ हम आते हैं आपके पास में एक एग्जांपल लेते हैं। दिस इज द एग्जांपल ऑफ क्विक सॉर्ट, राइट? ये हाई लेवल पे प्रोग्राम लिखा हुआ है, आप लोग ऑलरेडी इस चीज को पढ़ चुके हो, डा में भी
डीएस में भी क्विक सॉर्ट की आपके पास में एल्गो समझाने का मीनिंग नहीं है। यहाँ पे क्विक सॉर्ट का एक प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, इसको हम 3 एड्रेस कोड में कन्वर्ट करते हैं, राइट। सो 3 एड्रेस कोड में कन्वर्ट करने का मीनिंग क्या है, ये हमारे पास में फंक्शंस हैं, इनका कोई मीनिंग नहीं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं i इक्वल टू m माइनस वन। सो i इक्वल टू m माइनस वन ऑलरेडी 3 एड्रेस कोड में। 3 एड्रेस कोड का मतलब है वी यूज 3 ऑपरेंड only, right? So 1, 2 and 3, 3 operands are there, so this is a 3 address code, right? Next one is uh, j equal to n, again 3 address code. So each and every part we converted into 3 address code. So the conversion of this code is 3 address code is present here, right? Total 30 lines are used to convert this high level language code into 3 address code, right? So you go through one by one each and every step and solve this, right? Already solution is provided. So in this lecture we don't focus about the 3 address code conversion. We already discussed in previous lecture what is the 3 address code conversion mechanisms or schemes, right? So on the basis of that we convert entire code into 3 address code, right? After that, now next point is how to classify the basic blocks. Now the things are the start. So basic blocks कैसे create करेंगे, तो हमने आपको बताया था basic blocks का मतलब क्या होता है, जो continuations में रन कर रहे हैं, right? तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 ये 4 पार्ट आपके पास में क्या है, continuations में रन कर रहे हैं, right? लेकिन go to 5 ये वाला स्टेटमेंट आपके पास में इस कंटिन्यूएशंस को ब्रेक कर रहा है। इट मींस हम केवल 1 से लेके 4 तक के पार्ट को एक पर्टिकुलर ब्लॉक में, बेसिक ब्लॉक में डाल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड B1। नाउ इसके बाद हम 5 6 7 8 इस ब्लॉक को एक पार्ट में डाल सकते हैं, क्योंकि ये पूरा पार्ट एक कंटिन्यूएशन में हो रहा है। सो ये B2 हो गया। नेक्स्ट यहाँ से हम देखें गो टू 9, तो यानी 9 से लेके 12 तक का एक पार्ट हम किस में डाल सकते हैं, एक अलग ब्लॉक में। सो B1 B2 B3 तीन ब्लॉक्स हो गए, राइट। ये स्टेटमेंट हमारे पास अलग जाके रन कर रहा है, तो यानी ये स्टेटमेंट हमारे पास में कंप्लीटली इंटायरली अलग हो गया, राइट। तो इसको हम B4 मान लेते हैं। अब इसके बाद वाले इंस्ट्रक्शन 1 2 3 4 5 6 ये कंटिन्यूएशन में कहां तक रन हो रहे हैं, 22 तक, राइट। सो ये पूरा ब्लॉक आपके पास में एक साथ हो सकता है। तो 14 से लेके 22 तक एक नेक्स्ट बेसिक ब्लॉक बनेगा, सो ये B5 कहलाएगा। एंड रिमेनिंग आपके पास में 23 से लेके 30 तक ये पूरा एक ब्लॉक है, राइट। सो ये B6 बनेगा, क्लियर। सो इस 3 एड्रेस कोड में अगर हम आपको बेसिक ब्लॉक्स बनाने के लिए बोलते हैं तो कितने बेसिक ब्लॉक बने, 6 बेसिक ब्लॉक बने। नाउ फ्लो चार्ट बनाना है यानी फ्लो ग्राफ बनाना है इसका, तो फ्लो ग्राफ कैसे बनाएंगे, आपके पास में हर एक ब्लॉक को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करेंगे। नाउ देखते हैं इस चीज को, राइट। यहाँ पे अभी हमने जो चीजें डिस्कस करी थी वही चीज हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट करी है। 1 2 3 4 पहला वाला ब्लॉक, B2 B3 B4 में सिंगल स्टेटमेंट है, राइट। B5 राइट एंड B6, क्लियर। सो ये हमारे पास में हमने सारे ब्लॉक्स एक के नीचे एक लिख लिए। अब ये कैसे कनेक्ट है इस चीज को समझते हैं। सो B1 B2 से डायरेक्टली कनेक्ट था, हम लोगों ने यहाँ पे कोड देखा हुआ था। B1 के बाद में लाइन नंबर 5 डायरेक्टली कनेक्ट हो रहा था, राइट। इसके बाद ये वाला लाइन डायरेक्टली कनेक्ट हो रहा था, तो यहाँ पे देखो आपके पास में B1 B2 B3, राइट। ये सारे एक दूसरे के साथ में डायरेक्टली कनेक्ट है, कहाँ तक, B4 तक। अब लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट है जहां पे हम लाइन नंबर 8 देख रहे हैं, यानी ये वाला ब्लॉक इटसेल्फ में क्या कर रहा है, खुद को कॉल कर रहा है ना। 8 लाइन नंबर किसको कॉल कर रहा है, 5 को कॉल कर रहा है। सो ये चीज भी हमें फ्लो ग्राफ में दिखानी पड़ेगी। तो हम कैसे दिखा रहे हैं, B2 का जो ये लाइन नंबर है इफ वाला, इसको हमने कहाँ पे कनेक्ट कर दिया, फिर से i इक्वल टू i+1 पे कनेक्ट कर दिया, राइट। सो ये हमारे पास में सेल्फ लूप यूज हो गया, क्लियर, राइट। किस ब्लॉक के लिए, B2 ब्लॉक के लिए। अब देखो यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ है, गो टू B2, जबकि जब हमने 3 एड्रेस कोड कन्वर्ट किया था तो क्या लिखा हुआ था, गो टू 5। तो यहाँ पे लाइन नंबर नहीं होते हैं, यहाँ पे आपको क्या करना होता है, ब्लॉक्स बनाने होते हैं। आइडेंटिफिकेशन किसके थ्रू होता है, ब्लॉक्स के थ्रू। तो आपको किस ब्लॉक पे भेजना था, इटसेल्फ में B2 ब्लॉक पे भेजना था, तो आपने B2 पे भेज दिया। सेम एज, राइट। यहाँ पे अगर हम नेक्स्ट वाले कोड की बात करें 12 तक की, तो ये पूरा पार्ट आपके पास में किसको कनेक्ट कर रहा है, B3 ब्लॉक को, यानी लाइन नंबर 9 तक। सो हमने यहाँ से इसको कनेक्ट कर दिया सेल्फ लूप के थ्रू, तो B3 भी हमारे पास कनेक्ट हो गया। नाउ हम आते हैं हमारे पास में जो B4 ब्लॉक था, यानी हमारे पास दिस वन 13 लाइन नंबर पे हम देख रहे हैं ये कहाँ कहाँ पे कनेक्ट होता है। इफ I इज ग्रेटर देन इक्वल टू J, तो ये आपके पास में किस ब्लॉक पे पहुंच रहा है, B6 पे। और अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हो रही है तो किस वाले पार्ट को एग्जीक्यूट कर रहा है, B5 को। इट मींस जो हमारे पास में लाइन नंबर 3 है इसके दो करेक्टिव एक्शंस हैं, क्लियर। तो हमें दोनों करेक्टिव एक्शंस को डिफाइन करना पड़ेगा। अब यहाँ पे हमने कैसे डिफाइन किया, जो हमारे पास में पहला कंडीशन अगर आपके पास में ट्रू है
तो कहाँ जाना था, B6 वाले ब्लॉक पे, तो हमने यहाँ B6 लिख दिया, इसको B6 से जोड़ दिया। और अगर कंडीशन फॉल्स है तो कहाँ पे जाना है, B5 पे, हमने इसको B5 पे जोड़ दिया, राइट। अब देखो जब B5 वाला ब्लॉक था उसमें लास्ट वाला स्टेटमेंट क्या था, गो टू 5। गो टू 5 किस ब्लॉक में जा रहा है, B2 में, यानी इस लाइन नंबर पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, गो टू B2। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, गो टू B2, और इसको किससे कनेक्ट कर दिया है, B2 ब्लॉक से कनेक्ट कर दिया। सो ये किसका पार्ट हुआ आपके पास में, फ्लो ग्राफ का पार्ट हुआ। तो एग्जाम में अगर फ्लो ग्राफ बनाने के लिए आता है किसी भी प्रॉब्लम का, तो आपको पहले किस में कन्वर्ट करना है, 3 एड्रेस कोड में, फिर क्या बनाना है, बेसिक ब्लॉक्स बनाने हैं, फिर क्या बनाना है, उन बेसिक ब्लॉक्स को आपस में कनेक्ट करना है विद द हेल्प ऑफ कनेक्शंस, राइट। ये कनेक्शन कैसे स्टेब्लिश करोगे, इस कनेक्शन को स्टेब्लिश करने का तरीका क्या है, जो 3 एड्रेस कोड है इनमें गो टू स्टेटमेंट्स देखो। अब एक चीज आपको कंफ्यूजन करेगी कि सर इसमें व्हाइल लूप कहाँ गए। अगर हमें व्हाइल लूप फॉर लूप लगाना है तो हमने ये चीज पहले भी आपको बताई थी, 3 एड्रेस कोड में कोई भी व्हाइल लूप फॉर लूप हम किसके बेसिस पे लगाते हैं, इफ और गो टू के बेसिस पे लगाते हैं। तो पूरे 3 एड्रेस कोड में हमारे पास में या तो नॉर्मल स्टेटमेंट होंगे या फिर आपके पास में इफ गो टू होगा, राइट। सो इफ गो टू आपके पास में लूपिंग का भी काम करते हैं और इफ गो टू आपके पास में नॉर्मल कंडीशन चेकिंग का भी काम करते हैं, राइट। कैसे लूपिंग का काम कर रहे हैं, देखो इफ गो टू यहाँ पे ये लूप बन गया ना, लूप का काम कर रहा है, नॉर्मल ये कंडीशन चेकिंग का भी काम कर रहा है, राइट। सो दैट इज द मैकेनिज्म। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, अगर हम ऑप्टिमाइजेशन यूज करें, राइट। सो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे पास में डुप्लीकेट्स कोड्स हैं उनको रिमूव करें। सो कंपाइलर इस चीज को कैसे करता है, टोकन बाय टोकन स्कैन करता है, सिंबल टेबल्स के अंदर स्टोर करता है। तो अगर सिंबल टेबल में कोई भी रिपीट एंट्री मिलेगी तो वो उसे एलिमिनेट कर देगा, राइट। सो अब यहाँ पे देखो, अगर हम आपसे बोले T1 इक्वल टू 4 इंटू एन, सॉरी यहाँ वाले पार्ट को लेते हैं B5 को। B5 में हमारे पास में स्टेटमेंट देखो, T6 में क्या लिखा हुआ, 4 इंटू आई, राइट। और T7 पे भी क्या लिखा हुआ है, 4 इंटू आई। इट मीन्स अगर हम आपसे बोले T6 और T7 दोनों स्टेटमेंट आपके पास में ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप के हैं, राइट। केवल क्या डिफरेंस है आपके पास में, जो राइट हैंड सॉरी जो लेफ्ट हैंड साइड वेरिएबल है उसमें जो स्टोरेज हो रही है, बस वो आपके पास में क्या है, वेरिएबल नेम चेंज है। अदरवाइज दोनों का स्टोरेज क्या है, सिमिलर है, क्लियर। सो इट मींस हम इस कोड को रिड्यूस कर सकते हैं। अब ये जो पार्ट है ये कहलाता है आपके पास में लोकल ऑप्टिमाइजेशन, राइट। और अगर इसी पार्ट को हम सारे ब्लॉक्स के साथ में कंबाइन करेंगे तो दैट कॉल द ग्लोबल ऑप्टिमाइजेशन, राइट। सो वन बाय वन इस चीज को समझते हैं पहले। सो हमने सबसे पहले इस ब्लॉक को लिया हुआ है, B5 ब्लॉक को। यहाँ पे देखो T6, राइट, और आपके पास में T7, ये दोनों स्टेटमेंट सिमिलर थे, तो हमने क्या लिखा हुआ है, T6 इक्वल टू T7। मीनिंग क्लियर है, T6 इक्वल टू T7 का मीनिंग सबको क्लियर हो गया, राइट। नाउ अब आपके पास में नेक्स्ट पार्ट आता है, यहाँ पे हमारे पास में T8 में देखो क्या लिखा हुआ, 4 इंटू जे, और T10 में भी क्या लिखा हुआ, 4 इंटू जे। इट मीन्स हम इन दोनों पार्ट को भी एक साथ कंबाइन कर सकते हैं, तो यानी T8 इक्वल टू T10 होगा, राइट। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, जो डुप्लीकेट पार्ट है उसको रिमूव कर देंगे, तो T7 हम रिमूव करेंगे। लेकिन अगर कहीं T7 यूज हो रहा होगा तो इट मीन्स उसको किससे रिप्लेस करेंगे, T7 किसके बराबर हो गया है, T6 के, तो उसकी जगह T6 यूज करेंगे। तो देखो T6 हमने लिखा, नेक्स्ट वाला स्टेटमेंट लिखा, लेकिन ये स्टेटमेंट हमने क्या किया है, रिमूव कर दिया है यहाँ से, क्लियर। इसके बाद कौन सा स्टेटमेंट था, T8 हमने एज इट इज लिखा, T9 एज इट इज लिखा। इसके बाद हमारे पास हमने क्या यूज किया हुआ है, T7। अब क्योंकि T7 एग्जिस्ट नहीं कर रहा है और T7 किसके अकॉर्डिंग किसके इक्विवेलेंट है, T6 के, तो हम यहाँ पे T7 हटा के क्या लिखेंगे, T6, क्लियर, राइट। इसी तरीके से हमारे पास में T10, राइट, और T10 की जगह हम क्या यूज कर रहे हैं, 8 यूज कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, ATA, राइट। और ये T10 हम हटा चुके हैं, क्लियर। तो ये आपके पास में क्या हुआ, लोकल ऑप्टिमाइजेशन। इसी तरीके से हम एक और ब्लॉक देखें, अगर इस वाले ब्लॉक में भी देखें तो यहाँ पे भी हमारे पास में 4 इंटू आई कॉमन है, 4 इंटू आई कॉमन है, तो हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट, ऑन द बेसिस ऑफ सेम मैकेनिज्म, राइट, क्लियर। सो T11 और T12 आपके पास में सिमिलर है, T13 और T15 सिमिलर है, तो इसको हमने ऑप्टिमाइज कर दिया और अब आपके पास में नंबर ऑफ लाइंस जो है वो रिड्यूस हो गए, क्लियर। एक चीज और दिमाग में डालना, केवल आपके पास ऑप्टिमाइजेशन का मतलब ये नहीं होता है कि लाइन नंबर रिड्यूस करना। ऑप्टिमाइजेशन का बेसिक मीनिंग दूसरा भी क्या होता है कि अगर हम किसी भी लाइन नंबर्स को इंक्रीज भी कर दें, लेकिन हमारे पास में जो ओवरऑल एग्जीक्यूशन है वो अगर आपके पास में क्या हो रहा है, उसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो रही है, तो हम उसे यूज कर सकते हैं, क्लियर, राइट। सो अब आते हैं ग्लोबल ऑप्टिमाइजेशन पे। तो ग्लोबल ऑप्टिमाइजेशन का मीनिंग क्या है, देखो अगर हम 4 इंटू आई देखें तो 4 इंटू आई कहीं और नहीं यूज हो रहा है ना। सबसे पहले देखें 4 इंटू आई कहाँ यूज हो रहा है पूरे में, राइट, B2 में यूज हो रहा है,
राइट, T2 के अकॉर्डिंग। क्लियर? तो इट मींस हम 4 इंटू आई को किससे रिप्लेस कर सकते हैं? T2 से रिप्लेस कर सकते हैं। राइट? क्लियर? तो इट मींस 4 इंटू आई, अब कहीं पे भी जहां पे भी कहीं एग्जिस्ट कर रहा होगा उसको हम किससे रिप्लेस करेंगे? T2 से रिप्लेस करेंगे। तो इस चीज को समझते हैं। राइट? सो हमारे पास हमने दो स्टेटमेंट लिए, एक तो 4 इंटू आई और दूसरा हमारे पास 4 इंटू जे। तो एक B2 ब्लॉक में था, एक B5 ब्लॉक में था। क्लियर? अब इन B2 और B5 ब्लॉक्स को हम लोगों ने क्या किया हुआ है? ऑप्टिमाइज करना स्टार्ट किया। तो जो हमारे पास में अभी लोकल ऑप्टिमाइजेशन से ब्लॉक मिला था हमको, ये मिला था। राइट? अब इसको हम फिर से रिड्यूस कर सकते हैं ना। 4 इंटू आई, अब हमारे पास में T6 किसके बराबर हो जाएगा? T2 के बराबर हो जाएगा। अब हमें 4 इंटू आई लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। राइट? क्लियर हो रही चीज? तो देखो अब हमने क्या किया, यूजिंग B2 एंड B5। क्लियर? तो T6 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? T2, और T8 की जगह क्या लिख सकते हैं? T4। सो ये पूरा पीस ऑफ कोड फिर से रिड्यूस हो गया किसमें? x। अब ये क्या हो गया? T6 T2 में हो गया। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली T2 लिख सकते हैं। इस स्टेटमेंट का कोई रिक्वायरमेंट नहीं, इसको रिमूव कर दिया और x इक्वल टू a T2 लिख दिया। राइट? इसी तरीके से T8 की कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, हमने T8 को हटा दिया। और T9 में हमारे पास में हम सीधे क्या लिख सकते थे? T4 a T4 लिख दिया। इसी तरीके से नेक्स्ट वाले स्टेटमेंट को। सो अब हमारे पास में ये लाइन ऑफ कोड देखो, सबसे पहले जब हमने यूज किया था तो कितने लाइंस थी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 लाइन थी। लोकल ऑप्टिमाइजेशन के बाद में 1 2 3 4 5 6 7 बची, दो लाइन एलिमिनेट हुई। नाउ 1 2 3 4 5, यानी हमने अलग अलग लेवल पर ऑप्टिमाइज करते हुए इस कोड को की लेंथ को हमने क्या किया? रिड्यूस करना स्टार्ट किया। लेकिन अभी भी हमारे पास पूरे प्रोग्राम का जो ओवरऑल रिप्रेजेंटेशन था वो चेंज नहीं हुआ। राइट? आउटपुट वही आएगा, इनपुट्स वही है, कोई भी चेंजेस नहीं हुआ, केवल बीच के एग्जीक्यूशन हमने अपने हिसाब से मॉडिफाई कर दिया। राइट? नाउ नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। अब इस पार्ट को हम क्या फिर फर्दर रिड्यूस कर सकते हैं? तो देखते हैं। AT2 कहीं हमारे पास में कोड में हमें कहीं मिला था? AT2 हमारे पास में हमें मिला था किस वाले ब्लॉक में? B2 ब्लॉक में। और यहाँ पे आपने इसको किसके इक्विवेलेंट बनाया हुआ था? T3 के। राइट? तो इट मींस ग्लोबल ऑप्टिमाइजेशन हम मल्टीपल स्टेप में कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि एक ही स्टेप में हो। राइट? ह्यूमन और कंपाइलर दोनों सेम तरीके से वर्क करते हैं। कंपाइलर भी क्या करता है? पहले एक एक स्टेप चेक करता है, फिर उसको सिंबल टेबल में चेक करता है, अगर उसके करस्पॉन्डिंगली वो चीज एग्जिस्ट कर रही होती है तो उसको एलिमिनेट करता है। ह्यूमन माइंड भी क्या कर रहा है? एक एक लेवल पे चीजों को चेक कर रहा है, अगर मिलता है तो उसे रिड्यूस कर रहा है, फिर नेक्स्ट लेवल पे जा रहा है। सो कंपाइलर की वर्किंग और ह्यूमन जो वर्किंग है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होती है। राइट? क्लियर? सो लॉजिक जो हम बनाते हैं वो उसी के अकॉर्डिंग डिजाइन होता है। राइट? यहाँ पे हमारे पास में अब क्या हुआ? नेक्स्ट लेवल पे ऑप्टिमाइज करें तो AT2, राइट, इसको हम किससे रिप्लेस कर सकते थे? A22 हमारे पास में किसके अकॉर्डिंग लिखा हुआ था? इस चीज को हम लोग चेक किए हुए थे अभी। सो ये हमारे पास में T3 के बराबर था, तो हम इसकी जगह डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं? T3। तो देखो x इक्वल टू T3 हो गया। राइट? इसी तरीके से AT4 हमारे पास में किसके बराबर था? चेक कर लो। AT4 T5 के बराबर था। सो हमने ये T4 हटा के यहाँ पे T5 लिख दिया। अब क्या फर्क पड़ा देखो कंपाइलर में? पहले कंपाइलर को क्या करना पड़ रहा था? AT4 को इनिशियलाइज करना पड़ रहा था, फिर उसकी वैल्यू को फेच करना पड़ रहा था। लेकिन अब जब ये स्टेटमेंट यूज करेगा तो इसे डायरेक्टली T5 में वो वैल्यू मिल गई, तो यानी जो ये रिडक्शन था, जो ये एग्जीक्यूशन टाइम था, वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो गया। क्लियर? नाउ नेक्स्ट वाले पॉइंट पे हमारे पास में क्या लिखा हुआ था? T9। तो T9 हमारे पास में किससे रिड्यूस हो चुका था? यहाँ पे क्लियर? T9 इक्वल टू AT4 है, और AT4 हमारे पास में किसके बराबर था? T5 के। तो AT2 इक्वल टू T5 हो गया, AT4 इक्वल टू X हो गया। राइट? सो नंबर ऑफ लाइंस कोड 1 2 3 4 5। अब देखो यहाँ पे लाइंस में कोई फर्क नहीं पड़ा, रिड्यूस लाइंस के सेंस में नहीं हुआ, एग्जीक्यूशन के सेंस में हुआ। राइट? यहाँ पे टाइम आपके पास में क्या सेव हो गया? यहाँ पे स्पेस सेव हो रहा था, टाइम भी सेव हो रहा था। यहाँ पे आपके पास में केवल क्या सेव हो रहा है? टाइम सेव हो रहा है। स्पेस के करस्पॉन्डिंगली यहाँ कोई भी चेंजेस नहीं हुए। नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं, क्या इसको हम फर्दर रिड्यूस कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं। आपके पास में x इक्वल टू T3 है। अब T9 इक्वल टू T5, इस स्टेटमेंट का कोई मीनिंग नहीं है। देखो ये डेड कोड हो गया, यहाँ कहीं इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि T5 आप यहाँ डायरेक्टली यूज कर रहे हो, T9 कहीं यूज नहीं कर रहे हो। तो इस लाइन को हटा दिया। सो देखो आपका जो बेसिक ब्लॉक था वो कितनी लाइन का था? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लाइन्स का था। नाउ कितनी लाइन्स का रह गया? 4 लाइन्स का। राइट? दैट इज कॉल्ड द ऑप्टिमाइजेशन। राइट? सो ये पहला पार्ट था हमारे पास में कॉमन कोड्स, जो सबसे ज्यादा हमारे पास में कंपाइलर यूज करता है वो कॉमन कोड एलिमिनेशन यूज करता है, क्योंकि जब हम प्रोग्राम लिखते हैं
तो अलग सेंस होता है, जब उसका 3 कोड एड्रेस कन्वर्ट होता है तो अलग तरीके से कन्वर्ट होता है, तो कंपाइलर उसे अपने बेसिस पे ऑप्टिमाइज कर लेता है, राइट। तो एक बड़ा सा कोड ब्लॉक जो 20 लाइन का था, 25 लाइन का, तो वो सिंप्लीफाई होकर केवल 4 to 5 लाइंस का रह गया। क्लियर। नाउ नेक्स्ट पार्ट आते हैं आपके पास में कांस्टेंट प्रोपोगेशन और कॉपी प्रोपोगेशन का मीनिंग क्या होता है, राइट। इस चीज को समझते हैं। कांस्टेंट प्रोपोगेशन और कॉपी प्रोपोगेशन का मीनिंग क्या है। जब भी हम आपसे बात करते हैं, राइट, किसी भी चीज के लिए अगर हम बोलते हैं, यहाँ पे जैसे अभी हमने आपको बताया हुआ था कांस्टेंट प्रोपोगेशन क्या है, पहले भी हम लोग इस चीज को डिस्कस कर चुके हैं, थ्योरेटिकल टर्म में देख लेते हैं एक बार। कांस्टेंट प्रोपोगेशन, राइट, ये क्लियर। हम वेरिएबल्स की वैल्यू को चेंज करते हैं, राइट। पाई इक्वल टू 3.14 है, रेडियस इक्वल टू 10 है। अगर हम इसकी जगह पी आई इंटू रेडियस की जगह क्या होगा, हम इस चीज को डायरेक्टली पुट करेंगे। क्लियर। अब यहाँ न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू पे देखें इस चीज को, तो देखो x इक्वल टू T3 है, राइट, a इक्वल टू T2 इक्वल टू T5 है, a इक्वल टू T4 इक्वल टू x है, राइट। अब यहाँ पे देखो ये x और ये T3, क्लियर। सो अब हम यहाँ पे क्या करें, इस x को ना यूज करके डायरेक्टली T3 यूज कर ले। मीनिंग समझ में आ रहा है, क्योंकि हमें ये पता है इस x की हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, T3 हमारे पास ऑलरेडी काउंट है, राइट। और हम इस यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, x, यानी x की जगह हम क्या लिख सकते हैं, T3। अगर हम यहाँ पे T3 लिख देंगे तो अब इस कोड का कोई मतलब हुआ, ये हमारे पास में क्या है, वेस्टेज है, तो हम इसे हटा सकते हैं, राइट। सो कांस्टेंट या कॉपी प्रोपोगेशन का मीनिंग समझ में आया कि कुछ ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जिनके हम वैल्यूज को इनिशियलाइज कर रहे होते हैं, बाद में उनको आगे कहीं जाके यूज कर रहे होते हैं, राइट। तो हम डायरेक्टली उन वेरिएबल्स को डायरेक्ट यूज कर लें रादर देन उनको दूसरे वेरिएबल्स में कॉपी करने की जगह। तो इसीलिए इसका नाम क्या है, कॉपी प्रोपोगेशन। अब डेड कोड एलिमिनेशन क्या है, देखो ये पार्ट आपके पास में वेस्टेज हो गया, इसको हटा दो, तो अब केवल आपके पास में कितनी लाइन बची, 1 2 3। तो एक लाइन 9 नंबर का जो आपके पास में कोड था जिसमें नंबर ऑफ लाइंस 9 थे, वो अब सिंप्लीफाई होके कितनी लाइंस का रह गया, केवल 3 लाइंस का। तो आप ऑप्टिमाइजेशन की पावर समझो। अगर हम जैसे आपसे सिंपली बोले फेसबुक है, व्हाट्सएप है, राइट, अगर ये आपके पास में ऑप्टिमाइजेशंस नहीं यूज करेंगे तो आप कैसे बोल सकते हो कि आपके पास में आपका पेज विद इन अ टाइम फ्रेम डिस्प्ले हो जाएगा। सो देयर इज अ लॉट ऑफ ऑप्टिमाइजेशन ड्यूरिंग द सर्चिंग टाइम। सो कंपाइलर भी क्या करता है, बहुत सारे ऑप्टिमाइजेशन यूज करता है, कोड्स को जब रन कराता है या कंपाइल करता है अपने बेसिस पे, यूजर नहीं कर रहा है, कौन कर रहा है, कंपाइलर कर रहा है, राइट। सो दैट इज द इंटरनल वर्किंग ऑफ कंपाइलर्स, राइट। सो मीनिंग समझ में आया, कोड ऑप्टिमाइजेशन पे क्यों हम लोग फोकस करते हैं रादर देन आपके पास में लूप ऑप्टिमाइजेशन, क्योंकि हम लोग प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी कर सकते हैं, बट कोड ऑप्टिमाइजेशन आपके पास में क्या है, इंटरनली पार्ट पे भी अपने आप कंप्लीट होता है, राइट। नाउ नेक्स्ट पार्ट आते हैं, इंडेक्शन वेरिएबल और स्ट्रेंथ रिडक्शन का मीनिंग क्या होता है, राइट। सो इंडेक्शन वेरिएबल क्या है, पहले इसका मीनिंग समझो, राइट। इंडेक्शन वेरिएबल्स का मीनिंग क्या होता है आपके पास में, i इक्वल टू आई प्लस 1 जब हम यूज करते हैं, राइट, और t इक्वल टू 4 इंटू आई है। अब अगर हम लूप यूज कर रहे हैं तो आप देखो इस i की वैल्यू, t2 की वैल्यू इस i पे डिपेंडेंट है, यानी हम इन दोनों पार्ट्स को एक साथ ही यूज कर पाएंगे। अगर i की वैल्यू बढ़ेगी तो t2 भी आपके पास में इंक्रीज होगा, अगर i की वैल्यू सपोज मान लो तो हम डिक्रीज होती है तो ये t2 भी डिक्रीज होगा, हम राइट। सो दैट वेरिएबल्स आर कॉल्ड इंडेक्शन वेरिएबल, इंडेक्ट है दोनों एक दूसरे के साथ में, डिपेंडेंट है, सो दैट वेरिएबल कॉल्ड इज इंडेक्स वेरिएबल, राइट। और इंडेक्शन वेरिएबल्स को हम कैसे रिमूव करें, राइट, यही पार्ट आपके पास में कहलाता है स्ट्रेंथ रिडक्शन। कल हम लोगों ने थ्योरेटिकल टर्म में इसको डिस्कस किया था स्ट्रेंथ रिडक्शन को, शायद आपको नहीं क्लियर हुआ हो। ये देखो स्ट्रेंथ रिडक्शन का मीनिंग क्या था, a इक्वल टू a मल्टीप्लाई 2। अब अगर हम इसकी जगह a प्लस a लिखें तो ये भी स्ट्रेंथ रिडक्शन है। मीनिंग क्या है, कंपाइलर आपके पास में मल्टीप्लिकेशन में ज्यादा टाइम देता है रादर देन एडिशन के, राइट। अगर हम लोग थोड़ा सा अपने ओल्ड चाइल्डहुड पे जाएं तो हमें टेबल कैसे लर्न कराई जाती थी, पहले प्लस करके, यानी अगर हम मल्टीप्लिकेशन का पॉइंट डिस्कस करें तो इट मींस ये भी क्या है, एक तरीके का एडिशन है। तो इट मींस अगर हम मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे तो ये कहीं ना कहीं एडिशन के ही थ्रू परफॉर्म हो रहा है, तो इट टेक्स मैक्सिमम टाइम कंपैरिजन टू एडिशन। सो अगर कोई ऐसा मैकेनिज्म है कि हम इस पर्टिकुलर मल्टीप्लिकेशन को किस में कन्वर्ट कर सकें, एडिशन में कन्वर्ट कर सकें, तो वो हमारे लिए ज्यादा फ्रूटफुल होगा। क्लियर। सो इसी को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेंथ रिडक्शन, राइट। क्लियर। अब आते हैं आपके पास में जो हम यहाँ पे पार्ट डिस्कस कर रहे थे। सो ये दोनों आपके पास में इंडेक्शन वेरिएबल्स हैं, एक दूसरे की वैल्यू एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो रही है। सो हम इस इंडेक्शन वेरिएबल्स को कैसे रिमूव करें, सो हमने एक कॉन्सेप्ट लगाया, राइट, T2 इक्वल टू 4 इंटू आई करते हैं, इस स्टेटमेंट को बाहर निकाल लेते हैं इस ब्लॉक के, और नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है T2 इक्वल टू T2 प्लस 4।
अब आप देखो ओवरऑल एग्जीक्यूशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप T2 इक्वल टू 4 इंटू आई को बाहर निकाल चुके हो लूप के बाहर। आई की वैल्यू आपके पास प्रोग्राम में ऊपर से आ रही है, तो आई की वैल्यू जब भी चेंज होगी तो बट ऑब्वियस सी बात है वो पहले चेंज हो चुकी होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जनरेट होता है, सर आपने यहां से इस वेरिएबल को निकाल तो दिया, अब ये किस वाले ब्लॉक में जाएगा? यहाँ पे हमारे पास ये ब्लॉक थे, हमने यहां से इस वेरिएबल को निकाल दिया है, राइट, क्लियर। अब ये वाला वेरिएबल कहाँ जाएगा? सपोज हमने यहाँ से इस वेरिएबल को भी निकाल दिया, ये भी इंडेक्स वेरिएबल है, इंडेक्सन इसमें भी हम यूज कर सकते हैं, इसमें भी यूज कर सकते हैं, तो दोनों जगह से हमने ये स्टेटमेंट्स निकाल दिए, राइट। सो ये अब कहाँ पे जाएंगे? सो बट ऑब्वियस है इसके ऊपर कौन सा ब्लॉक है? B1, तो ये कहाँ पे इनिशियलाइज हो जाएंगे? जाके B1 में, राइट। सो जब ये B1 में इनिशियलाइज हो जाएंगे तो हर बार जब भी आपके पास में चीजें कंप्यूट होंगी तो ये पहले ही कंप्यूट हो चुके होंगे, इसके बाद यहाँ पे इसकी वैल्यू को असाइन किया गया होगा। तो आपके पास ओवरऑल कोड एग्जीक्यूशन में कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन कंपाइलर के जो आपके पास में रनिंग टाइम था, जो कंपाइलेशन टाइम था, उनमें बहुत सारा डिफरेंस आ गया, राइट। जहां उसे मल्टीप्लिकेशन करना था वहां पे आपने एडिशन से काम चला लिया, राइट। सपोज ये स्टेटमेंट 5 टाइम्स चलता तो आपको 5 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता, अब मल्टीप्लिकेशन की जगह आपको एडिशन करना है। सो सपोज अगर हम मान लेते हैं मल्टीप्लिकेशन में 2 सेकंड लग रहे हैं और एडिशन में 1 सेकंड लग रहे हैं, तो आपने 5 सेकंड सेव कर दी, क्लियर, मीनिंग समझ में आ रहा है? सो ये चीज आपके पास में बहुत केयरफुली हैंडल करता है कंपाइलर, कैसे आपके पास में स्टैंड डायरेक्शंस होगा, ये उसके इंटरनल मैकेनिज्म्स हैं, राइट, उसके बेसिस पे वो उसको सॉल्व करता है, राइट। सो ये ओवरऑल आपके पास में जो बेसिक था कंपाइलर पॉइंट ऑफ व्यू पे, वो आपके पास में कोड ऑप्टिमाइजेशन यहाँ तक का था, राइट। अब आते हैं यूजर पॉइंट ऑफ व्यू पे। तो यूजर पॉइंट ऑफ व्यू पे दो कॉन्सेप्ट यूज होते हैं, पहला है आपके पास में लूप अनरोलिंग और दूसरा है आपके पास में लूप जैमिंग, राइट। जितने लोगों ने भी आपके पास में ये कोडिंग कंपटीशन यूज किए होंगे, वहां पे लूप पे बहुत सारे आपके पास में इस तरीके के ट्रिक्स हम लोग यूज करते हैं, राइट। सो वन ऑफ देम ट्रिक्स इज कॉल्ड लूप अनरोलिंग। लूप अनरोलिंग का मीनिंग क्या होता है कि हम किसी भी तरीके से कोई ऐसा मैकेनिज्म लगाएं कि जो लूप हमारे पास में चल रहा है उसको हम रिड्यूस कर सकें। तो फॉर एग्जाम्पल, पहले हम एग्जाम्पल समझेंगे, बाद में थ्योरी समझेंगे। वाइल आई इज लेस देन इक्वल टू 100, अगर हम इस पीस ऑफ कोड की बात करें तो ये पीस ऑफ कोड हमारे पास में कितनी बार चलेगा? 100 टाइम्स चलेगा, लेकिन हम चाहते हैं इस पीस ऑफ कोड को केवल हम 50 टाइम्स चलाएं या 25 टाइम्स चलाएं, राइट। सो हम क्या करें, हम इस कोड की वैल्यू को 100 ही रहने दें, लेकिन इस वाले पार्ट को हम क्या करें, नंबर ऑफ टाइम्स नीचे रिपीट कर दें। तो क्या होगा, एक सिंगल पास में ही वो 3 बार एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन ये चीज तब पॉसिबल है जब आपके पास में आपको अपने प्रोग्राम का लॉजिक क्लियर हो कि अगर आप इस तरीके की कोई भी चीज कर रहे हो तो आपके प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन है या जो प्रोग्राम का आपके पास में एक्चुअल डिजायर्ड आउटपुट है वो चेंज नहीं हो। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, बी की वैल्यू को ए में कॉपी कर रहे हैं, राइट। सो पहले आपके पास में आई की वैल्यू 1 होगी तो पहला एलिमेंट जाएगा, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी, फिर 4 होगी, यही है। अब अगर हमने इसको दो पार्ट में कैटेगराइज कर दिया, एक लूप के अंदर हमने क्या किया हुआ है, दो पार्ट डिवाइड कर दिए। हमने पहले बार में भी वही स्टेटमेंट लिखा है, दूसरी बार में भी वही स्टेटमेंट लिखा, तो अब ये टोटल लूप कितनी बार चलेगा, केवल 50 टाइम, राइट। और 50 टाइम में ही आपका काम कंप्लीट हो गया। इसी चीज को आप दो बार और नीचे लिख दो तो आपके पास में क्या होगा, 25 टाइम्स में ही आपके पास में ये काम हो जाएगा। सो लूप अनरोलिंग का मीनिंग समझ में आया कि लूप अनरोलिंग का मीनिंग क्या होता है आपके पास में? तो देखो, लूप अनरोलिंग इज अ लूप ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक दैट हेल्प्स टू ऑप्टिमाइज द एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ प्रोग्राम, राइट, क्लियर। बेसिकली रिमूव और रिडक्शन इन जो भी आपके पास में रिपीटेशंस होते हैं उनको हम रिमूव कर सकते हैं, या फिर आपके पास में उनको इंक्रीज करके अपने लूप की जो कैपेसिटी होती है उसको रिड्यूस कर सकते हैं, राइट। लूप अनरोलिंग इंक्रीज द प्रोग्राम स्पीड बाय एलिमिनेटिंग लूप कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस एंड लूप टेस्ट राइट इंस्ट्रक्शंस। क्लियर, मीनिंग क्लियर हुआ कि आप जब भी लूप की बात कर रहे हैं तो हम एक ऐसा मैकेनिज्म यूज करें जिससे हमारे पास में जो टोटल नंबर ऑफ टाइम्स लूप चल रहा है वो किसी भी तरीके से रिड्यूस हो जाए। दैट्स कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड द लूप अनरोलिंग। Now the last topic is loop jamming. लूप जैमिंग का मतलब क्या होता है, आप किसी भी तरीके से मल्टीपल लूप को एक साथ कंबाइन कर सको, राइट। सो लूप जॉइनिंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर लूप्स इन अ सिंगल लूप, राइट। ये स्ट्रेटेजी आप लोग कोड जब आप हैकबेट इन्फी या इस तरीके के कोडिंग कंपटीशन देते हो तो वहां पे ये चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। क्यों? क्योंकि आप क्या कर रहे हो, कोड को विद इन अ टाइम फ्रेम रन कराना होता है, अदरवाइज आपके पास में क्या आता है, टाइम आउट की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, टेस्ट केस पास नहीं होते हैं, राइट। सो एक किसी प्रोग्राम का हमने पहले से क्या डिफाइन कर रखा है,
एक स्टैंडर्ड टाइम डिफाइन कर रखा है। हमने अपने लॉजिक को बेस माना हुआ है, आप उससे कम कर दोगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उससे ज्यादा नहीं टाइम जाना चाहिए। सो वहां पे आपके पास में कोड ऑप्टिमाइजेशन की टेक्निक्स यूज होती हैं। तो जितने भी कोडिंग कॉम्पिटिशन होते हैं वो आपके पास किस चीज पे वर्कआउट कराते हैं, आपके ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स पे वर्कआउट करते हैं, राइट। जिससे आपका लॉजिकल पावर जो है, यानी प्रोग्राम लॉजिक पावर कितना अच्छा है, वो चीज समझ में आती है, राइट। सो लूप जैमिंग उसका एक पार्ट है। मैक्सिमम टाइम हम लूप को प्रेफर्ड करते हैं, लेकिन हमारे पास में नंबर ऑफ लूप लगाने से क्या होता है, प्रोग्राम का टाइम क्या होता है, डिलेड होता जाता है। सो हाउ टू अवॉइड these multiples looping, so that concept is called the loop jamming. So यहाँ पे दो लूप यूज किए गए हैं आई के, राइट। हमने इस आई के लूप, पहले वाले लूप में हमने क्या किया है, ए की वैल्यू को i+5 किया है, दूसरे वाले में b इक्वल टू i+10 किया है। अब हमें ये दिख रहा है कि दोनों लूप सेम टाइम में चल रहे हैं, सेम एग्जीक्यूशन के लिए चल रहे हैं। तो हम क्या करें, इन दोनों लूप को एक साथ लगा दें और इन दोनों स्टेटमेंट्स को एक साथ इसके अंदर डिफाइन कर दे। तो अब आपके पास में दो अलग अलग लूप लगने की जगह क्या हुआ, आपके पास में एक ही लूप में इसका काम कंप्लीट हो गया, राइट। सो दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड द लूप जैमिंग, राइट। सो ये आपके पास में मैक्सिमम जो आपका कंपाइलर का पार्ट था वो कंप्लीट हो गया है। एक थोड़ा सा पार्ट और बचता है, राइट, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है वो भी, तो कल के लेक्चर में उसको डिस्कस कर लेंगे। सबसे इजी यूनिट पूरे कंपाइलर में कोड ऑप्टिमाइजेशन है, सबसे मैक्सिमम मार्क्स मिलते हैं, राइट। हमेशा आपके पास में लॉन्ग क्वेश्चन में कोड ऑप्टिमाइजेशन का क्वेश्चन होता है। सो गो थ्रू इट, राइट। अगर कोई डाउट हो पूछ लो। कोड ऑप्टिमाइजेशन में बेसिकली कहाँ से स्टार्ट होता है, 3 एड्रेस कोड मैकेनिज्म, डैक, राइट। ये सब टॉपिक एक दूसरे के साथ में रिलेट है और सारे का कॉन्सेप्ट सिंपल है। एक ही पार्ट में जहां से हम लोगों ने स्टार्ट किया था बेसिक ब्लॉक्स, राइट, यहाँ से। इवन इससे पहले भी हम लोगों ने जो आपके पास में कोड ऑप्टिमाइजेशन डिस्कस किए हुए थे, 3 कोड, राइट। सो यहाँ से आपके पास में 3 एड्रेस कोड से लेके लास्ट तक में आपको कंपाइलर में 15 to 20 मार्क्स के क्वेश्चन मिलते हैं, राइट, इस पर्टिकुलर टॉपिक से। सो आप इस टॉपिक को बहुत इजीली समअप कर सकते हो, एक बार अपने बेसिस पे गो थ्रू कर लो, राइट। कल आपका कंपाइलर का सिलेबस खत्म हो जाएगा। इसके बाद आपके पास जो भी क्लासेस होंगी वो आपके पास में डाउट रिमूवल क्लासेस होंगी, राइट। तो आप उसको अपने बेसिस पे कंप्लीट कर लो। अगर कोई डाउट हो तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो।